میں نے کسی سیانے کا قول پڑھا تھا کہ فرض، مرض اور قرض آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس وقت توجہ نہیں دی تھی، مگر جب ان تینوں سے واسطہ پڑا تو اس قول کی عملی تفسیر بھی سمجھ میں آ گئی۔ اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام ندیم قیصر ہے۔ تعلق ایک متوسط اور مختصر خاندان سے ہے۔ خاندان میں اور ابا جی تھے۔ دور پرے کے کچھ رشتے دار تھے جو ہمیں منہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ یہ وقت میری پیدائش کے وقت سے شروع ہوا، اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا فرق بھی بڑھتا گیا۔ نتیجے میں ان لوگوں سے میل ملاقات بھی کم ہوتی چلی گئی۔ بڑے تایا ابا کے ہاں 2 سال پہلے گیا تھا۔ ان کی چھوٹی بیٹی روحی کی شادی ہوئی تھی۔ اماں کی خواہش تھی میری شادی روحی سے ہو، لیکن اماں کی یہ خواہش اماں کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ چھوٹے تایا ابا کے ہاں گئے ہوئے بھی سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا تھا ایک نوکری کے سلسلے میں، جب میں نے ان کی مدد چاہی تھی۔ میں خوش گیا کہ چھوٹے تایا ابا نے شاید سفارش کا سوچا ہے، اور ان کی جھاڑ کھا کر واپس آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی معمولی سی نوکری کے لیے سفارش کر کے اپنی بے عزتی نہیں کرانی تھی، اس لیے مہربانی کر کے آئندہ ایسی کوئی فرمائش نہ کروں۔ بڑے تایا ابا بزنس مین تھے اور ڈیفنس میں رہائش تھی۔ چھوٹے تایا ابا بزنس مین تو نہیں تھے، مگر ان کی دولت شاید کچھ زیادہ ہی تھی، کیونکہ وہ 19 گریڈ کے بیوروکریٹ تھے۔ دونوں بھائیوں میں ابا ہی پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے نہ زیادہ پڑھا اور نہ ہی بزنس کا سوچا۔ میٹرک کر کے ایم سی میں جونیئر کلرک بھرتی ہوئے اور کلرک کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے۔ ان کی ساری جمع پونجی میں ہی تھا، کیونکہ مجھ پر ہی ان کی ساری جمع پونجی خرچ ہوئی تھی۔ اماں ابا مجھے اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتے تھے، مگر نجی اسکولوں کی فیس بھرنے کی استطاعت نہیں تھی، اس لیے کوشش کر کے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا، جہاں کا تعلیمی معیار نجی اسکولوں کے برابر ہی تھا۔ میں نے یہیں سے میٹرک کیا اور اتنے اچھے گریڈ سے کیا کہ ایک سرکاری ٹیکنیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ کیونکہ ابا میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ مجھے انجینئرنگ پڑھا سکتے، اس لیے میں نے ڈپلومے کا انتخاب کیا۔ اگر بعد میں موقع ملتا تو میں اپنے بل پر آگے بڑھ سکتا تھا۔ 3 سالہ ڈپلومہ کے بعد مجھے ایک کارخانے میں جاب مل گئی۔ ابھی مجھے کارخانے میں ملازمت کرتے ہوئے پہلا ہی سال تھا کہ ابا ملازمت سے اور اماں زندگی سے ریٹائر ہو گئیں۔ ابا کی ریٹائرمنٹ تو متوقع تھی، مگر اماں کی وفات نے مجھے اور ابا دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 3 افراد کی اس مختصر کنبے کا محور اماں تھیں، اور وہ نہ رہیں تو ہمیں لگا کہ ہماری زندگی کا محور نہیں رہا ہے۔ ہمارا اماں کے ساتھ 20-21 برس کا ساتھ تھا۔ شادی کے ٹھیک 10 مہینے بعد میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اماں ابا کو مزید اولاد نہیں دی، اس لیے میں ہی ان کی امیدوں اور چاہتوں کا مرکز بن گیا۔ اماں عام سی عورت تھیں، جیسے ابا تھے ویسے ہی ان کی بیوی ملی تھی۔ دونوں میں قناعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابا جی اپنی ملازمت اور کم تنخواہ سے مطمئن تھے، اور اماں اس آمدنی سے۔ گھر کو وہ اس طرح چلاتی تھی کہ ہم باپ بیٹے کو مشکل سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب اماں نہ رہیں تو ان کی اہمیت کا احساس ہوا۔ میں نے محور والی بات کہی ہے، ہمارا تو گھر ہی بکھر کر رہ گیا تھا، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے اور ابا کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سودا کہاں سے آتا ہے، اور 2 آدمیوں کی چائے بنانے کے لیے کتنی پتی درکار ہوتی ہے۔ اماں کی وفات پر آخری موقع تھا جب میں نے اپنے سارے خاندان کو ایک ساتھ دیکھا۔ اماں کا صرف ایک بھائی تھے، اور وہ ہماری طرح تھے، بلکہ ہم سے بھی گئے گزرے تھے، کہ ان کی بیوی اور بچے بھی نہیں تھے۔ جوانی میں ایک بار شادی کی اور بیوی بھاگ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی کا نام نہیں لیا تھا۔ 2 تایاؤں کے ساتھ میری ایک پھپھو بھی ہیں۔ پھپھو کی شادی بڑے تایا نے اپنے بزنس پارٹنر سے کی تھی، اگرچہ اب وہ پارٹنر نہیں رہے تھے، لیکن بزنس مین ضرور تھے۔ پھپھو بھی کوٹھی میں رہتی تھیں۔ وہ بھائی سے اور مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر شوہر سے مجبور تھی، جو ہم سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے اسٹیٹس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا کہ خون کے رشتوں کے معیاری زندگی میں بھی اتنا فرق ہوتا ہے۔ میں نے تو دیکھا تھا کہ گھر کا کوئی ایک فرد اوپر چلا جاتا یا ملک سے باہر نکل جاتا تو وہ کوشش کر کے دوسروں کو بھی اپنے پاس بلا لینا۔ یہاں ایک بھائی کے لیے 2 بڑے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ شاید اس میں قصور ابا کا تھا کہ انہیں لینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا۔ بہرحال ہم اپنی زندگی سے اتنے غیر مطمئن بھی نہیں تھے۔ ہاں، اماں کی وفات ہمارے لیے بہت بڑا ایک دھچکا تھی۔ اس سے سنبھلنے میں ہمیں بہت عرصہ لگا۔ 1 سال بعد ابا نے میری شادی کا سوچا، مگر میں فی الحال اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پہلے اپنے مکان کا کر لوں، اس کے بعد شادی کا ڈول ڈالا جائے۔
मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह अम्मा अब्बा ने दर बदर जिंदगी गुजारी थी और हर तीसरे चौथे साल सामान लेकर भाग रहे होते, मैं भी ऐसा ही करूं। बचपन से लेकर अब तक मैं बिला मुबालगा कुछ 7-8 घर और मोहल्ले देख चुका था। बाज़ जगहों पर तो साल से भी कम रहना नसीब हुआ था। अब्बा को फितरी तौर पर मकान का ख्याल नहीं था। एक तो वो इसके आदी थे कि किराए के मकान में रहें, और फिर इनकी उम्र में इंसान को दुनिया के सामान की परवाह जरा कम रह जाती है। इन्हें रिटायरमेंट पर जो रकम मिली थी वो उन्होंने फिलहाल इनकम स्कीम में डिपॉजिट कर दी थी। मेरी शादी के लिए काम आती। अब्बा की पेंशन, स्कीम की आमदनी और मेरी तनख्वाह मिलाकर इतनी रकम हो जाया करती थी कि इसके निस्फ में हमारा आराम से गुजारा हो जाता था और आधी रकम बच जाती थी। मैं इस बच जाने वाली रकम को किसी मकान या फ्लैट में तब्दील कराना चाहता था, मगर मैं बुकिंग और इंस्टॉलमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने देखा कि इसमें आदमी को सिर्फ ख्वारी नसीब होती है। मैं रकम जमा कर रहा था और इस चक्कर में था कि कोई जगह मिल जाए या बड़ी रकम देकर कब्जा ले लूं और बाकी रहते हुए अदा करूं। इन्हीं दिनों अब्बा अपने कुलीग के इंतकाल पर उसके जनाजे में गए। इरफान साहब अब्बा के साथ काम करते थे और अभी इनकी जॉब जारी थी, मगर ऊपर से बुलावा आ गया। अब्बा ने आकर बताया कि इनकी बीवी और बेटी बहुत रो रही थी क्योंकि उनका अब कोई नहीं रहा है। बेटी छोटी है और हाल ही में इंटर किया है। अब इस बेचारी को रोजगार के लिए भागना पड़ेगा। मैंने अफसोस किया। चंद दिन बाद अब्बा स्वयं से आए तो सोच में पड़े थे। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हैं? बोले, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि इरफान की बेटी रिजवाना को तुम्हारे लिए मांग लूं। अच्छी प्यारी बच्ची है और यतीम हो गई है। उसकी माँ अब रिश्ते के लिए भी परेशान है। अपना घर है मगर कोई आमदनी का जरिया नहीं है सिवाय पेंशन और ग्रेजुएटी के। अब्बा हमारा तो अपना घर भी नहीं है, क्या वो मान जाएंगे? अब्बा ने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या कमी है तुम्हें? अच्छी शक्ल है, अच्छा किरदार है और मुलाजमत कर रहे हो। अपना घर नहीं है लेकिन हो जाएगा। मैंने सोचा और कहा, अब्बा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तक अपना घर नहीं हो जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा। अभी बात करते हैं, रिजवाना शायद आगे भी पढ़ेगी। फिर बाप का अभी इंतकाल हुआ है, समझ लो 2 साल तो लग जाएंगे। ठीक है, आप बात कर लें। अब्बा ने बात की और रिजवाना की अम्मी मान गईं। इरफान साहब के इंतकाल के 2 महीने बाद एक सादा सी तकरीब में हमारा रिश्ता तय हो गया। वो लोग भी शादी 2 साल बाद ही करना चाहते थे। एक तो आंटी इरफान साहब की मिलने वाली ग्रेजुएटी से कुछ रकम से ऊपर घर बनवा रही थी कि खुद ऊपर मुंतकिल हो जाए और नीचे वाला पोर्शन किराए पर दे दें तो आमदनी का जरिया बन जाए। फिर रिजवाना ने बीकॉम के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अपने अखराजात पूरे करने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। मंगनी हुई तो मैंने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी। अब्बा के पास कोई 5 लाख रुपए थे और मैंने भी 1 लाख बचाए थे। हमारी रिहाइश साइट एरिया के नजदीक एक मुतवस्सित आबादी में थी। हम ज्यादातर इसी आबादी के मुख्तलिफ मोहल्लों में रहे थे। शायद एक बार यहाँ से कुछ अरसे के लिए बाहर गए, मगर दोबारा यहीं आ गए। उस वक्त मैं छोटा था इसलिए ठीक से याद नहीं, मगर जब आबादी बढ़ी तो देखते ही देखते मकानों की ऊपरी मंजिलें बढ़ती चली गईं और जिनके पास बड़े प्लॉट थे उन्होंने पुराने घर गिराकर उन पर बिल्डिंगें खड़ी कर लीं और फ्लैट बनाकर बेचने लगे। ऐसी ही एक जेर तामीर बिल्डिंग में मुझे 2 कमरों और लाउंज का फ्लैट पसंद आया। ये दूसरी मंजिल पर था और वेस्ट ओपन था, इसलिए हवा भी खूब आती। बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिहाज से आखिरी मरहले में थी। बिल्डर का कहना था कि वो 1 साल के अंदर नीचे से कब्जा देना शुरू कर देगा। ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में मुझे फ्लैट मिल जाता और कीमत भी वाले वाली थी। 6 लाख पहले देने थे, बाकी 2 लाख रहते हुए किस्तों में देने थे। बिल्डर को मैं जानता था, इसी इलाके में उसने कोई 1 दर्जन इमारतें बनाकर फरोख्त की थी। वो वक्त पर और अच्छा काम करने वाला आदमी था। मैं फ्लैट बुक कराने का सोच रहा था मगर बुक कराने की नौबत नहीं आई। अब्बा की तबीयत खराब तो कुछ अरसे से चली आ रही थी। इन्हें खांसी उठती थी और बड़ी मुश्किल से ठीक होती थी। दवा और इलाज कराते थे मगर कुछ अरसे बाद दोबारा शुरू हो जाती थी। अब्बा ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारी थी। सिगरेट उन्होंने जवानी में चंद एक बार पी होगी, इसलिए उनकी बीमारी को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। मगर एक दिन मैं कारखाने से वापस आया तो अब्बा जर्द चेहरा लिए बैठे हुए थे और सीना दबा रखा था। मैं परेशान हो गया। क्या हुआ अब्बा? कुछ नहीं, उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा। सीने में दर्द हो रहा है, यूं लग रहा है जैसे अंदर कोई नोकीली चीज चुभ रही हो। मैं अब्बा को मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले गया तो उसने कुछ दवाएं और हिदायत दी।
अगर इनसे फ़ायदा न हो तो इनको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाना। 2 दिन बाद मैंने यही किया, क्योंकि अब्बा को ज़रा भी अफाका नहीं हुआ था। स्पेशलिस्ट ने चंद टेस्ट फौरी कराने को कहा। मैं देखकर ठटका कि ये टेस्ट एक मखसूस अस्पताल से कराने को कहा था, जो कैंसर के इलाज के लिए मशहूर था। मैं अब्बा को वहाँ ले गया और टेस्ट कराया। फिर चुपके से वहीं के एक डॉक्टर से इस टेस्ट के बारे में पूछा तो उसने तस्दीक की कि यह टेस्ट कैंसर की मौजूदगी जानने के लिए कराया जाता है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, मगर अब्बा को मैंने यही बताया कि इन्हें टीबी का टेस्ट कराने लाया हूँ, क्योंकि डॉक्टर को शुबा है कि इन्हें टीबी हो रही है। अब्बा अपनी बीमारी के हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे। उन्होंने कहा, इस उम्र में क्या टीबी और क्या कैंसर, मौत किसी बहाने तो आनी ही है। मुझे तेरी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र क्यों करते हैं अब्बा? ये जो तू इलाज पर खर्च कर रहा है, इससे बचाएगा तो तेरे काम आएगा। अब्बा कैसी बात कर रहे हैं? मेरे लिए आप अहम हैं, पैसा नहीं। बेटा, आजकल पैसे की कदर है और मुझे आज नहीं तो कल मर जाना है। अब्बा मायूसी से बोले। शायद इनकी छठी हिस्स ने इन्हें बता दिया था कि इन्हें कोई बड़ी बीमारी है, मगर मैंने उनसे सच कहा था। मेरे लिए अब्बा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अगर उनके इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती तो मैं खुद को भी बेच सकता था। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया तो उसमें कैंसर निकला था। अब्बा को फेफड़ों का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने मजीद कुछ टेस्ट लिख कर दिए, जिनसे ये पता चलता था कि कैंसर किस दर्जे का है और उसका इलाज किस तरह मुमकिन है। ये सारे टेस्ट कराने पर कुछ 40,000 रुपये खर्च हो गए। जब नतीजा सामने आया तो पता चला कि अब्बा के दोनों फेफड़ों के कुछ कुछ हिस्से कैंसर ज़दा हो रहे थे और इनका एक ही इलाज था कि इन हिस्सों को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता। जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं परेशान हो गया। फेफड़ों के बगैर इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? पूरे फेफड़े नहीं निकलेंगे, उनका सिर्फ कैंसर ज़दा हिस्सा निकाला जाएगा। उसके बाद आपके वालिद बाकी मानदा फेफड़ों पर जिंदा और सेहतमंद रह सकेंगे। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर फौरन ही ख्याल आया, डॉक्टर साहब खर्च कितना आएगा? तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए। ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, ज़्यादा तो है, लेकिन अगर आप सरकारी या किसी खैराती अस्पताल से इलाज कराएंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ऑपरेशन के बाद भी मसला हल ना हो। कैंसर दोबारा हो सकता है। किसी अच्छी जगह से कराएंगे तो शिफायाबी की उम्मीद 90% से ज़्यादा होगी। आप ये मत समझें कि मैं आपको किसी के पास जाने का मशवरा दे रहा हूँ। आप खुद देख लें और फैसला कर लें। डॉक्टर साहब, मैं तो ये भी नहीं जानता कि कौन से सरकारी या खैराती अस्पताल इलाज करते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स को मैं क्या जानूंगा। आप देख लें। डॉक्टर ने एक लिस्ट मेरी तरफ बढ़ाई। ये सरकारी और ट्रस्ट अस्पताल इस नौइयत के कैंसर को ऑपरेट कर सकते हैं। पहले आप उनसे बात कर लें। अगर समझ में ना आए तो मेरे पास आइएगा, मैं कुछ प्राइवेट सर्जन्स के बारे में बताऊंगा, मगर जहन में रखिएगा कि फिर खर्च इससे भी ज़्यादा होगा। मैं पहले अब्बा की रिपोर्ट्स लेकर सरकारी अस्पतालों में गया और वहाँ जो हाल देखने को मिला तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मुमकिन है किसी अच्छी जगह से ऑपरेशन के बावजूद वो बच ना पाते, लेकिन मैं इनको इस जिल्लत और ख्वारी से नहीं गुजरने दूंगा जिससे यहाँ मौजूद मरीज गुजर रहे हैं। उसके बाद मैंने ट्रस्ट अस्पतालों का रुख किया, मगर वहाँ न तो मुझे कोई ख़ास इंतजामात नज़र आए और फिर वो भी लाखों में ही अखराजात बता रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब्बा को 2 महीने के अंदर लाजमी ऑपरेशन करा लेना चाहिए, वरना कैंसर मजीद फैलने का खदशा था। 1 महीना इन्हीं चक्करों में गुजर गया और कुछ समझ में नहीं आया तो मजबूरन मैंने डॉक्टर को रुख और उससे प्राइवेट सर्जनों के बारे में पूछा। मुझे मालूम था आप मेरे पास आएंगे। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेट भी ज्यादातर आम ऑपरेशन की तरह किया जाता है। इससे दोबारा कैंसर होने का बहुत ज्यादा इम्कान होता है। मैं जिन 3 सर्जनों के पास आपको भेज रहा हूँ, ये शोबे में जदीद तरीन तरबियत लेकर आए हैं और उनके पास सेटअप भी अच्छा है। महंगे हैं, मगर आप कोशिश करें तो कुछ रियायत हो सकेगी। इन 3 सर्जनों से अपॉइंटमेंट लेना ही एक मुहिम से कम नहीं था। जब से अब्बा की बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ था और मैं इनको लेकर डॉक्टरों के पास भाग दौड़ कर रहा था, मैंने अपनी शिफ्ट इवनिंग की करा ली थी। सुबह मैं डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर लगाता था। वहां से थका हारा आता तो मुलाजमत पर जाता और वहां से थका टूटा आता तो सोने से पहले अब्बा की चीजें देखता था कि इन्हें कोई मसला ना हो। अगर थे वो मुझसे कहते थे कि मैं आराम करूं, मगर मुझे इसके बगैर सुकून से नींद नहीं आती थी। इन दिनों में मुश्किल से 6 घंटे सो रहा था। अब्बा की बीमारी की इत्तला उनके भाइयों तक पहुंच गई थी, मगर उन्हें इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो भाई से आकर मिल लेते और उन्हें फोन पर अपना फर्ज पूरा कर लिया था। फुप्पो मिलने के लिए आई थी और अब्बा से लिपट कर रोती रही थी।
जाते हुए चुपके से मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, अगर ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। लिफाफे में 20,000 रुपए थे। जब लाखों का मामला आया तो मैंने सोचा उनसे बात करूं, मगर फिर मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। मेरी गैरत ने तो ये भी गवारा नहीं किया था जब आंटी ने मकान की बात पर दबे अल्फाज में कहा था कि इनके बाद मकान रिजवाना का होगा और रिजवाना का होगा तो मेरा भी होगा। मगर मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अपने जोर बाजू पर भरोसा करने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैंने फुप्पो से नहीं कहा और तायाओं से कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इन 3 सर्जनों को अब्बा की रिपोर्ट्स दिखाई और उन्होंने कहा कि अब्बा का इलाज हो जाएगा और वो ठीक भी हो जाएंगे। मगर जब अखराजात की बात आई तो उन्होंने इसमें कमी से इनकार कर दिया। तीनों ने मुझे जो तखमीना दिया वो तकरीबन 7 के आसपास था। एक डॉक्टर ने एहसान करके बमुश्किल इसको 6:45 पर ले आया। उसने कहा, इसमें सब शामिल होगा, 1 महीने तक उनकी दवाएं भी। ये बहुत महंगी होती हैं और गरीब लोग ऑपरेट तो करा लेते हैं मगर दवाओं का कोर्स पूरा नहीं कराते, जिससे बाज़ औक़ात कैंसर दोबारा आ जाता है या कोई और मसला हो जाता है और बदनामी सारी सर्जन की होती है। मेरे पास इतनी रकम नहीं थी, वो मुश्किल 6 लाख थे। मैंने मिन्नत समाजा करके डॉक्टर एहसान को इसी पर आमादा कर लिया और वादा किया कि बाकी के 5 लाख इसे 1 महीने के अंदर करके दे दूंगा। रकम देने के 1 हफ्ते बाद अब्बा का ऑपरेशन था। मैंने बाकी रकम के लिए अभी से भाग दौड़ शुरू कर दी थी। सेठ से बात की मगर इसने 50,000 से ज्यादा देने से इनकार कर दिया। 50 मिल गए मगर 25 अभी भी कम थे। मैं सोच रहा था क्या करूं और कहां से करूं। दोस्त अहबाब थे मगर मैंने कभी उनसे कर्ज उधार नहीं लिया। अब जरूरत आन पड़ी थी और कमर हिम्मत कस रहा था कि अचानक रिजवाना हमारे घर चली आई। मैं और अब्बा दोनों ही हैरान थे। मैं मंगनी के बाद सिर्फ 2 बार उसके घर गया था और वो मेरे सामने नहीं आई थी, इसलिए उसकी आमद गैर मुतवक्की थी। उसने आबाया और नकाब लिया हुआ था। वो कॉलेज से आई थी। मैं अंकल को देखने आई हूँ। अब्बा ने खुश होकर इसका इस्तकबाल किया और मुझे खातिर मदारत का हुक्म दिया। मैं मौसम की मुनासबत से कोल्ड ड्रिंक और कुछ रिफ्रेशमेंट ले आया। वो आधे घंटे तक रुकी और अब्बा से बातें करती रही। फिर जाने लगे तो दरवाजे पर उसने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाल कर मुझे दिया। ये मैं आपके लिए लाई हूँ, आपकी सालगिरह का गिफ्ट है। मैं झिझका, इसकी क्या जरूरत थी। उसने संजीदगी से कहा, जब आप इसे खोल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने सामने से रिजवानों को मंगनी या रस्म वाले दिन ही देखा था। ना तो उससे बात हुई थी और ना ही मेरे पास उसका मोबाइल नंबर था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसके पास मोबाइल है या नहीं। दूसरी बार मैं आंटी की दावत पर गया था और इसमें रिजवाना की झलक भी नजर नहीं आई थी। देखा जाए तो ये आजकल के रिश्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें मंगेतर न सिर्फ आपस में राब्ते रखते हैं बल्कि मिलते भी हैं। और जो जरा आजाद ख्याल हों तो इनके तो अतवार ही दूसरे होते हैं। मगर एक तो हमारे घरों का माहौल ऐसा नहीं था और दूसरे हम माँ बाप के अकलौते थे। जो बच्चे अकलौते हों वो आम कैटेगरी से जरा हटकर ही होते हैं। इसलिए रिजवाना का यूं आना और फिर तोहफा देकर जाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। मगर उसके जाने के बाद मैंने अपने कमरे में आकर उसका गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ तोहफा खोला तो उसमें खिलाफ तवक्को किसी परफ्यूम के बजाय 1000 और 500 के नोटों की एक लिपटी हुई गड्डी और एक छोटा सा रोका था। मैंने रोका उठाया और उस पर तहरीर था, शायद आप मुझे आजकल की आम लड़कियों की तरह समझ रहे हो, जो मंगेतर से फ्री होती हैं और इससे मिलती हैं और तोहफे भी देती हैं। मगर अल्लाह गवाह है, मैं किसी ऐसे मकसद से नहीं आई थी। मकसद आप तक अपना खुलूस पहुंचाना था। ये वो रकम है जो मैंने कई सालों में जमा की है। अब्बू देते थे, कभी अम्मी देती थी। मैं मैट्रिक के वक्त से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। जरूरत की सारी चीजें अम्मी अब्बू ला देते थे और मुझे फजूल खर्ची की आदत नहीं है, इसलिए ये जमा होती रही। और जब मुझे अंकल का पता चला तो मैंने सोचा कि शायद ये छोटी सी रकम आपके किसी काम आए। जब आप खुद को बहुत अकेला महसूस करें तो आपको याद दिलाए कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपके साथ है। तहरीर पढ़कर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा और रिजवाना का रिश्ता अब सिर्फ मंगेतर वाला नहीं रहा है, बल्कि इसमें मोहब्बत भी शामिल हो गई है। इसके एक एक लफ्ज से मेरे लिए मोहब्बत टपक रही थी और ये आम मोहब्बत नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से उठने वाली मोहब्बत थी, जो इंसान को अपनी सबसे कीमती मता कुर्बान करने पर मजबूर करती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने रकम देखना चाही तो धुंधलाहट ने आ घेरा। मैंने आंसू साफ करके रकम गिनी जो 30,000 के लगभग थी। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि मैं इसे वापस कर दूं, मगर फौरन मेरे दिल ने मुझे डांटा कि मैं यूं इसकी मोहब्बत और खुलूस की तजलील करूंगा
इसने मुझे रकम नहीं अपना सब कुछ दे दिया था। उसका जवाब यही हो सकता था कि मैं अपना सब कुछ उसे दे दूं। मैं इसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा इससे बराह रास्त राब्ता ही नहीं था। रकम मुकम्मल हुई तो मैंने ऑपरेशन से पहले ही पूरी रकम जमा करा दी। ऑपरेशन डॉक्टर एहसान अपने क्लिनिक में कर रहे थे और शहर के एक पोश इलाके में ही छोटा सा लेकिन बहुत जदीद और तमाम तर सहूलतों से आरास्ता क्लिनिक था। ऑपरेशन बहुत तवील था जो 4.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा। इस दौरान में पप्पो और आंटी वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। तायाओं ने इस बार भी आने की जहमत नहीं की थी और उन्होंने मुझसे कॉल करके पूछ लिया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था उनसे बात करने को, मगर सिर्फ अल्लाह वास्ते कर ली कि इस वक्त मुझे सिर्फ अब्बा की फिक्र थी। तकरीबन 5 घंटे बाद अंदर से डॉक्टर एहसान बहुत थके हुए बरामद हुए और उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सिर्फ मेरा शाना थपका और चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अंदर से निकलने वाले एक अटेंडेंट से अब्बा के बारे में पूछा। उसने बताया वो ठीक हैं, फिलहाल इन्हें 12 घंटे सख्त अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। वो बेहोश रहेंगे और कोई इनसे नहीं मिल सकेगा। मैं देख सकता हूँ? हाँ, कमरे के बाहर से, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने इस पोल्यूशन और जर्म फ्री कमरे के बाहर शीशे से दूसरी तरफ अब्बा को बिस्तर पर साकित लेटे देखा। उनके मुंह से ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन सर्जन और उसके अमले का अंदाज बता रहा था कि ऑपरेशन कामयाब रहा था। अब्बा 12 घंटे बाद होश में आ गए, मगर उनसे मिलने की इजाजत अब भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक दिन बाद मुझे यूं इजाजत मिली कि मैं सर से पांव तक एक खास लिबास में था और मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। अंदर जाने से पहले मुझे ओजोन गैस से शावर दिया गया जो जरासीम कश होती है। अब्बा को बोलने से मना किया हुआ था क्योंकि इससे फेफड़ों पर जोर आता और अभी जख्म ताज़ा थे, मगर मुझे देखकर अब्बा की आंखों में रोशनी आ गई थी। मैं सिर्फ 5 मिनट रुक सका कि बस इतनी ही इजाजत थी।